Hello guys and girls, my name is Nishant and welcome to the YouTube channel of Vishwas Nishant. In today's lecture, we would be discussing the first topic of macroeconomics and we would be following the book of VK publications, that is Introduction to Macroeconomics, which is for class 12th CBSE syllabus. This lecture would be helpful for all the aspirants who are preparing for UPSC as well as to the students who are appearing for class 12th board as well. For the aspirants of UPSC, it will just act as a base to understand the economics subject as whole. So starting with the first topic, the first chapter, that is introduction. So obviously it would be an introduction to macroeconomics. To understand macroeconomics, we have four aspects. The first aspect is to understand the meaning of the term. The second aspect is to differentiate it from the microeconomics. So in the second aspect, we would be comparing microeconomics with the macroeconomics. The third is the scope of the macroeconomics, and the fourth is its significance. So starting with the meaning of macroeconomics, the term has been derived from a Greek term. That Greek term is macros. This macros actually means large. So in macroeconomics, we will be discussing economy at a very large level. Coming on to its exact definition, it is that branch of economics which deals with economic problems or deals with economic issues at a large level, at the level of economy as a whole. So जब हम वो economic problems micro level पर भी थी, individual level पर भी थी, but when we discuss those problems, when we look at those issues, economic issues, at the national level, you can say, or at a very large level, or at the level of economy as a whole, we call it as a macroeconomics. Like when we look at the employment rate in a country or in a specific region, like we look at the growth of output, what is the growth of output of this region or a specific country, like we look at the problem of price rise. In other words, you can call it as an inflation as well. Or the problem of depression in economy. What is depression in economy? When actually there is a lack of demand of goods and services, that what we call as the depression. जब demand बहुत कम हो जाए goods की, services की, almost सारे के सारे sectors में, that what we call as the depression in an economy. However, ये term आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं है 11th class के aspirants के लिए, but those who are preparing for UPSC aspirants, उनके लिए proper detail में आएगी ये terms जब वो economy as a subject को पढ़ेंगे. Coming on to the next aspect, the second aspect of micro versus macro. To understand the difference, the actual difference, I think we should form a table for that. So, on the one side, we will be having a microeconomics. On the other side, I am having the macroeconomics. And on the left hand side, I would be writing the basis. What are the basis of difference? So the first basis of difference, on the basis of which we can compare the microeconomics with the macroeconomics, is कि the basis of study. आप उसको study कैसे करते हो? What are the basis of study? Basis of study. So, in case of microeconomics, we look at the scarcity. We look at the choices at the individual level, at the level of an household, at the level of a specific firm. On the other hand, we make such the basis of the study is obviously the scarcity and choices
The scarcity and choices at the level of इकोनॉमी एज होल। आप सेम ही चीज कर रहे हो, बस एक बड़े लेवल पर कर रहे हो, इसलिए उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स ना बोल के मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल दिया गया है। फंडा सेम का सेम है। हाँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स में यू लुक फॉर मैक्सिमम satisfaction because we are talking about a person, an individual, a household or a firm. On the other hand, when it comes to macroeconomics, we run for maximum welfare. जब बड़े लेवल पर इकोनॉमी की बात होती है तब हम ज्यादा वेलफेयर की बात करते हैं। Sorted. Next basis of differentiation is the economic variables. The second is economic variables. So, in case of microeconomics, we have economic variables as the demand by consumer, or in other words, consumers' demand, and the supply by a producer, producer's supply. So, ये दो वेरिएबल्स के बेसिस पर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को समझने की कोशिश करते हैं और उसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आने की कोशिश भी करते हैं। ऑन द अदर हैंड, जब मैं पूरे के पूरे इकोनॉमी की बात कर रहा हूं तो सारे के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड, व्हाट वी कॉल इट एज एग्रीगेट डिमांड, सबकी डिमांड, एग्रीगेट डिमांड। एंड इन केस ऑफ सप्लाई, ऑब्वियसली इट इज एग्रीगेट सप्लाई, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स की सप्लाई, सारे के सारे कंज्यूमर्स की डिमांड को एग्रीगेट इन टोटल बोला जा रहा है। देन द थर्ड basis we have is economic agents. Economic agents क्या करेंगे इसमें? Agents would be responsible for taking economic decisions. Very simple. Economic decisions लेने वाले लोगों को economic agents बोल रहा हूं, तो माइक्रो के केस में कौन होगा economic agent? सिंपल, अभी हम डिस्कस करके आए। It would be the consumers and the producers will be the economic agents who will be involved in the economic decision making. On the other hand, in case of macroeconomics, we would be having state and statutory bodies जो इकोनॉमिक डिसीजन लेंगे। कंट्री के लेवल पर सोच के देखो, इकोनॉमिक डिसीजन कौन लेता है? सबसे बड़ा आरबीआई है जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है। फिर आपके पास है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कुछ इकोनॉमिक डिसीजंस ले लेते हैं। कुछ इकोनॉमिक डिसीजन ले लेते हैं टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये सारी स्टेट या स्टेटरी बॉडीज हैं विच टेक डिसीजन, विच टेक इकोनॉमिक डिसीजंस एट द इकोनॉमी लेवल एट होल। फाइन। सो next basis of differentiation we have here is the degree of aggregation. किस हद तक सारे के सारे डेटा को इकट्ठा करके शोकेस किया जाता है। इन केस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑब्वियसली ये डेटा बहुत ही छोटे लेवल पर होता है। सो द डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इज वेरी लिमिटेड and it is limited up to, you can say, a particular commodity. So all the firms who are producing that particular commodity, जब हम उनको स्टडी करेंगे, that is the degree of aggregation in case of microeconomics. On the other hand, जब हम बात करते हैं macroeconomics की, so it is aggregation at the level of economy, or you can say aggregation of all the commodities, of all the services of the economy. Fine. So this is the degree of aggregation.
Now, next point, next basis of differentiation is the different set of assumptions. What are the different set of assumptions? See, when it comes to understanding an economy, so you cannot understand economy altogether. You have to understand that this is subject in parts. कि अगर आपने इंडिविजुअल लेवल की इकोनॉमी को समझना है तो सबसे पहले उसके कुछ चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, आपको सारे के सारी कंट्री को कांस्टेंट करना पड़ेगा, तो आप इंडिविजुअल की बात को समझ पाओगे कि वो क्या डिमांड करना चाहता है, उसकी डिमांड पर क्या क्या चीजें इफेक्ट डाल सकती हैं, बिकॉज देयर आर एन नंबर ऑफ फैक्टर्स विच कैन एक्चुअली अफेक्ट द डिमांड ऑफ अ कंज्यूमर. So you have to keep all other factors at constant for a time being. ठीक है? So that is why we are discussing the different set of assumptions. So you have to assume that we are keeping all these things constant and these things to be changing. So different set of assumption में हम ये बात कर रहे हैं कि कुछ चीजें हमें कांस्टेंट रखनी पड़ती हैं और कुछ चीजें हमें उसको रेगुलर चलने देते हैं, उसको चेंज होने देते हैं. जैसे व्हेन वी टॉक अबाउट माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो टोटल आउटपुट है, जो टोटल एम्प्लॉयमेंट रेट है, टोटल आउटपुट एट द कंट्री लेवल एंड द एम्प्लॉयमेंट रेट, इन दोनों को हम कांस्टेंट रखते हैं जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं. ऑन दी अदर, हालांकि ये दोनों चीजें आर नॉट केप्ट कांस्टेंट व्हेन वी स्टडी द मैक्रो इकोनॉमिक्स, बट हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को जब पढ़ते हैं तब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, distribution of income. Now, distribution of income is obviously at the household level. Distribution of income is obviously at the individual level. So इन चीजों को आपको constant रखना पड़ता है, जबकि ये सारी चीजें आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में constant नहीं रखते हो. So that is the degree of assumption. Fine. Coming on to the next basis of differentiation, that is degree of. Sorry, not a degree of, it is actually central issue. Central issue. So what is the central issue when we talk about microeconomics? The central issue is of allocation of resources. कि how would these scarce resources will be allocated? ये जो limited resources हैं, ये लिमिटेड रिसोर्सेस को, आई एम सॉरी, बोलते बोलते स्पेलिंग गलत हो गई, ये जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं इनका एलोकेशन कैसे करोगे, सबसे बड़ा जो सेंट्रल इशू माइक्रो इकोनॉमिक्स का ये है. ऑन दी अदर हैंड, आप जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पे बात करते हो, सो यू टॉक अबाउट डिटर्मिनेशन ऑफ level of output at the economy level. जब आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हो तो उसके अंदर आप कितना आउटपुट अल्टीमेटली निकलेगा इस पूरी की पूरी कंट्री में, वो सबसे बड़ा इशू है, क्योंकि आपने जीडीपी को कैलकुलेट करना है. आउटपुट इज प्रोडक्शन. अब वो किस किस तरीके से कैलकुलेट की जाती है, वी वुड बी डिस्कसिंग इट इन द नेक्स्ट चैप्टर. सो सबसे बड़ा इशू, सबसे ज्यादा मुश्किल इशू जो इसके अंदर होता है वो ये होता है कि आप जीडीपी कैलकुलेट, इसको आप ऐसे बोल सकते हो, जीडीपी कैलकुलेशन कैसे होगी, ये लेवल ऑफ आउटपुट की जितना आउटपुट निकला है वो कितना है एक्चुअली, बिकॉज इट इज अ वेरी टीडियस टास्क टू कीप अ चेक ऑन द लेवल, द अमाउंट ऑफ आउटपुट एट ईच लेवल. बहुत मुश्किल है, ठीक है. और माइक्रो इकोनॉमिक्स में वो जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं उनको एलोकेट करना बहुत मुश्किल है. फाइन. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट basis of differentiation. The seventh basis of differentiation we have is the method of study. इन दोनों को पढ़ा कैसे जाता है? What is the method of study? In case of microeconomics, we look at the partial equilibrium because you are
trying to study the economics at the level of individual or a household or a firm. On the other hand, when we talk about the economy at a national level or at the level of a specific region, we look at a general equilibrium. Now, what is the difference between partial equilibrium and general equilibrium? Partial equilibrium, let's say कि when you are studying a commodity market, आप commodity market में किसी एक specific प्रोडक्ट की मार्केट में इक्विलिब्रियम लाने की कोशिश कर रहे हो, तो उस केस में आप लेबर मार्केट को स्टडी नहीं करोगे, उस केस में आप कैपिटल की मार्केट को स्टडी नहीं करोगे, फाइन, बिकॉज लेबर में अफेक्ट अ डिमांड, लेबर में अफेक्ट द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी, आप उसको एक बार साइड रखोगे. कैपिटल में अफेक्ट द सप्लाई ऑफ दैट कमोडिटी, आप उसको अलग रखोगे. बट जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो हम लेबर मार्केट को भी बीच में कंसीडर करते हैं, हम कैपिटल मार्केट को भी कंसीडर करते हैं और फिर कमोडिटी मार्केट को भी तो कंसीडर करते ही करते हैं. सो उनका जो इंपैक्ट है, लेबर का कम होना, ज्यादा होना, महंगा होना, सस्ता होना, कैपिटल का कम होना, ज्यादा होना, महंगा होना, सस्ता होना, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, वो सारी चीजें एक बार के लिए आप साइड कर देते हो. सो दैट इज अ पार्शियल इक्विलिब्रियम. On the other hand, when you are taking all these factors all together, जब आप सारी की सारी मार्केट्स को एक साथ डिस्कस करते हो, that is what we call as a general equilibrium. Now, next and the last basis of difference is the micro macro paradox. Now, what is micro macro paradox? That is, you can say कि एक डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ लॉजिक्स है, कि जैसे when we talk about microeconomics, so microeconomics में आपको ये बोला जाता है कि आप जितनी ज्यादा सेविंग करोगे that is good for your prosperity, for the future prosperity. So it says more saving. It asks you to save more because it will lead to more future prosperity. On the other hand, when it comes to macroeconomics, अगर आप सेम चीज को लेते हो, let's say I take an example of more saving. अगर आप सेविंग कम करोगे तो आप खर्चा क्या करोगे? आप खर्चा कम करोगे. अगर आप खर्चा कम करोगे तो आप डिमांड कम कर रहे हो. अगर आप डिमांड कम कर रहे हो तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगा. अगर प्रोडक्शन कम होगा तो ग्रोथ ऑफ आउटपुट क्या होगा? कम होगा. ग्रोथ ऑफ आउटपुट को ही मैं क्या बोल रहा हूं? जीडीपी बोल रहा हूं. सॉर्टेड. सो ये है माइक्रो मैक्रो का पैराडॉक्स. फाइन. नाउ लेट्स कम टू द थर्ड एस्पेक्ट टू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज अ टेबल. आई होप यू हैव मेड इट अलॉन्ग विद मी. ठीक है, ये एक डायग्राम है माइक्रो वर्सेस मैक्रो का, ये एक डायग्राम है. अब हम चलते हैं स्कोप के कुछ पॉइंट्स को लेकर, फिर इस डायग्राम को एक साथ बाद में देख लेंगे और रिवाइज कर लेंगे. सो व्हाट इज द स्कोप? सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ स्कोप कि क्या ही यूज, अच्छा यूज तो चलो हम फिर भी सिग्निफिकेंस में देख लेंगे, किस हद तक यूज कर सकते हैं इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को. सो इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को आप यूज कर सकते हो to estimate national income. आप नेशनल इनकम को अगर कैलकुलेट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी, और इससे रिलेटेड और भी कुछ एग्रीगेट्स हैं उसको भी कैलकुलेट करने में आपको इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, क्या है अगले चैप्टर में समझेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है. तो ये सारे रिलेटेड एग्रीगेट्स को और नेशनल इनकम समझने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है. द नेक्स्ट इज, अगर आपको थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पढ़नी है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट को पढ़ने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ेगी कि कौन कौन सी चीजें हैं
जो एम्प्लॉयमेंट कॉज करती हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट कॉज करती हैं, किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट गेट अफेक्टेड, कौन कौन से फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट द एम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं, कम करते हैं. सो दिस इज व्हाट वी रीड इन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट. और ये हम कब डिस्कस करते हैं, ये हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं, बिकॉज एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अ मैटर एट अ लेवल ऑफ इंडिविजुअल, at a level of firm on the other, but rather it is a matter to be discussed at the level of a nation or a region or a economy as whole. Coming on to the next, the theory of money. In theory of money, you read about money, you read about credit creation, कैसे उधार लोन आपको कैसे दिया जाता है, बैंक कहाँ से पैसा लाता है आपको लोन देने के लिए, और ऑन द अदर हैंड आपको सेविंग्स अकाउंट पर भी वो कुछ इंटरेस्ट देता है. सो हाउ डज इट हैपन? सो दैट इज थ्योरी ऑफ मनी. फाइन. द नेक्स्ट इज इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप्स. इनको पढ़ने के लिए कि अगर इन्फ्लेशन हो रही है तो वो कैसे हो रही है और इतनी ज्यादा क्यों हो रही है, ये जनरल प्राइस लेवल क्यों इंक्रीज हो रहा है, या डिफ्लेशन क्यों हो रही है, ये जो रेट है वो क्यों कम हो रहे हैं, ये प्राइसेस क्यों कम हो रहे हैं. सो इन चीज को पढ़ने के लिए आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स की जरूरत पड़ती है. देन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड द रोल ऑफ गवर्नमेंट. In other words, you study the government budgeting. सरकार गवर्नमेंट बजट कैसे बनाती है, किस किस कौन से फैक्टर्स हैं, कौन से एसेट्स हैं, किन किन चीजों को इंक्लूड करती है जब वो बजट बनाती है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मेकिंग दैट बजट. सो ये सारी चीजें होती हैं. नेक्स्ट, द स्कोप इज एक्सचेंज रेट. आपके रुपीस को डॉलर में कन्वर्ट करना और कितने रुपीस लगेंगे डॉलर को कन्वर्ट करने के लिए, वो एक्सचेंज रेट को जज करना हो, उस एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करना हो. ऑन द अदर हैंड, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक ऐसी चीज है जो एक्चुअली में आपकी कंट्री को दूसरी कंट्रीज के साथ कंपेयर करने में हेल्प करती है कि आपकी पेमेंट कितनी पेंडिंग है, आपके पास कितना पैसा है, आपका देना कितना रहता है, क्योंकि आप बाकी सारी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हो, सर्विसेज में भी कर रहे हो, गुड्स में भी कर रहे हो, लोन ले रहे हो, लोन दे रहे हो. तो बैलेंस, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, कितना बैलेंस है, क्या हमने ज्यादा पैसा दे रखा है या हमने ज्यादा पैसा ले रखा है, क्या हमारे पास ट्रेड डेफिसिट है. ट्रेड डेफिसिट मतलब कि आपने एक्चुअली में इंपोर्ट ज्यादा किया है और एक्सपोर्ट कम किया है. तो क्या ये अच्छा इंडिकेटर है या बुरा इंडिकेटर है, वो बाद में डिसाइड होगा, बट ये पता कहां से लगेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में पता लगेगा. सॉर्टेड. नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू द सिग्निफिकेंस. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स? So the first point of significance is it actually gives a description of the economy. ये इकोनॉमी को डिस्क्राइब करता है, क्योंकि आपने इसका स्कोप देखा कि ये थ्योरी ऑफ मनी, गवर्नमेंट बजटिंग, तो इस सब से क्या होगा, इकोनॉमी की हालत तो पता लगेगी. बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इससे क्या पता लगेगा आपको? इट वुड एक्चुअली डिस्क्राइब द इकोनॉमी की अनएम्प्लॉयमेंट लेवल कैसा है, उसमें हेल्प करता है. नेक्स्ट, it also helps to create a roadmap for growth and development. Obviously, जब आपको पता है कि आपको कितना पैसा देना आपका रहता है, कितना पैसा आपका लेना रहता है, how much money can you actually invest, how much money can you create through credit. सो उसके बेसिस पर आप प्रॉपर रोड मैप बना सकते हो ग्रोथ और डेवलपमेंट के, गवर्नमेंट बजटिंग ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए. फाइन. इट ऑल्सो हेल्प्स अस टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, और इट ऑल्सो हेल्प अस टू स्टडी द स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी, और इवन have some corrective measures if they are required.
सो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इकोनॉमी को स्टेबल लाने में भी ये हेल्प करता है। अगर स्टेबल नहीं है तो उसको जो स्टेबल कैसे किया जाए, थ्रू फिस्कल पॉलिसी, थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, वो सब कुछ हम बाद में डिस्कस करेंगे। इट हेल्प्स अस टू नो द BOP स्टेटस। व्हाट इज BOP मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, उसका स्टेटस क्या है वो पता करने में हमें हेल्प करता है। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स अस टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ पॉवर्टी। गरीबी की प्रॉब्लम को समझने में हेल्प करता है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बेसिस पर फर्दर जो आप स्टडी करोगे गवर्नमेंट बजटिंग के लिए, उसमें वो चीज़ हेल्प करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन। ऑब्वियसली जब आप इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की बात करोगे तो उसके लिए आप कोई ना कोई पॉलिसी लेकर आओगे। दो मेजर पॉलिसीज जिसको हम इकोनॉमी में डिस्कस करते हैं, दे आर द मॉनेटरी पॉलिसी एंड द फिस्कल पॉलिसी। तो वो फिस्कल पॉलिसी को बनाने में, उसकी फॉर्मेशन में, उसके फॉर्मुलेशन में, मॉनेटरी पॉलिसी के फॉर्मुलेशन में, उसके फॉर्मेशन में ये चीज़ें हेल्प करती हैं। सो दैट इज रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन की मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, is what is its meaning, how it is differentiated from microeconomics. These are the basis of differences and the actual differences have also been mentioned. The next is the scope of economy, किस किस चीज में हमें हेल्प कर सकता है। The last is the significance of the macroeconomics, इसकी जरूरत हमें क्यों है। Fine. So that is regarding the chapter 1 of the macroeconomics, that is the introduction to macroeconomics. That's all for this lecture. See you in the next lecture. Bye and take care.